جی السلام علیکم. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جمع کی صورت میں تین کیسز ہم نے سمجھا کہ ایک جمع تکسیر جو جس میں جمع بناتے ہوئے لفظ کو توڑ کر بنایا جاتا ہے. ایک اسم الجم ایسا جمع کہ جس کا واحد نہ ہو. ایک اسم الجنس الجمعی کہ جس کا واحد پتہ لگانے کے لیے یا تو گولتا یا پھر یا النسب لگایا جاتا ہے. ایسے الفاظ اگر پلورل کی شکل میں آئے تو ان کے فعل کے ساتھ اختیار ہوتا ہے کہ آپ گولتا لگائیں یا نہ لگائیں. ہاں شجرن اس کو جمع الجم کہتے ہیں. شجرن کی جمع اشجارن یہ جمع الجم بنے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. رکیں ابھی ایک منٹ. ایک منٹ ہم چونکہ اب آپ نے یہ بات ذکر کی ہے میں انشاءاللہ ایک منٹ رک جائیں. میں القاموس شجر میں انشاءاللہ گروپ میں ہی انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. پھر میں سے ایک منٹ رک جائیں. الشجر. اچھا میں آپ کو ایک چیز میرے خیال سے میں نے بتانے میں بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ غفلت سے کام لیا. یہ جو الفاظ ہے نا یہ جیسے شجرن. شجرن یہ شجرن ہی ہے. ٹھیک ہے. شجرن ہے یا جندن ہے. ٹھیک ہے. یا رومن ہے یا عرب ہے. ان کو اگر آپ نوٹ کریں نا تو یہ ایک جنس کے نام ہے لیکن یہ جمع کے فارم میں جنس کے نام ہے. جمع کے فارم میں جنس کے نام ہے جیسے شجرن. ہاں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹری. ٹری شجرن جیسے ٹری لیکن یہ ٹری جو ہے یہ ایک جنس کا نام ہے. جیسے میں کہتا ہوں مین یا مین. مین ایک جنس کا نام ہے لیکن اگر اس میں سے مجھے کسی واحد کا نام لینا ہو تو میں کس طرح لوں گا. یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں اسم الجنس الجمعی. مثال کے طور پر جند فوج کو کہتے ہیں. یہ ایک پورے جنس کا نام ہے فوج. لیکن اب اس فوج میں سے مجھے کسی ایک واحد شخص کا نام لینا ہے تو میں کس طرح لوں گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ یہ پلورل ورڈز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنس کے نام ہے. یہ اس جنس کا نام ہے یا اس جینس کا نام ہے جس کو ہم عام طور پر اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں. جیسے روم. روم ایک کنٹری ہے. ایک ایک علاقہ ہے. یہ اس کا نام ہے. اب وہاں پہ رہنے والا کوئی ایک بندہ اس کو کیا کہیں گے تو رومی. تو اسی طرح شجر جیسے پیڑ. اب پیڑ یہ ایک کلاس ہے. ایک جینس ہے ایک جینس ہے یا جنس ہے. اس میں سے اگر کسی واحد کا مجھے نام لینا ہے تو میں کس طرح لوں گا. تو یہ اصل ہمارا موضوع ہوتا ہے. ہاں شجرن کی جمع اشجارن ہے لیکن اس صورت میں جب آپ شجرن سے مراد کوئی خاص جو ہے نا پیڑ اپنے ذہن میں لا رہے ہوں. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں ٹری اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایک خاص ٹری ہے تو وہ بھی ٹری ہی کہلائے گا. مین اگر آپ کسی خاص انسان کو کہیں تو وہ خاص انسان مین ہی کہلائے گا. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اس پورے جنس میں سے کسی ایک کو اگر آپ کو ریفر کرنا ہے تو اس کو کس طرح کرتے ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. شجر جو ہے نا شجر. شجر یہ جنس کا نام ہے. ایک ایک کلاس آف آپ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق کا نام ہے. ایک مخلوق کے ایک کلاس کا نام ہے شجر. یہ جب شجر میں سے آپ کو اگر کسی واحد کا نام لینا ہے تو آپ کس طرح لیں گے. یہ ہمارا یہاں پر موضوع ہے کہ شجرن سے شجرتن یہ ایک واحد اس کا بنتا ہے. ایک واحد اس کا بنتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں.
बाकी खामोश है। यानी ये दिखने में हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये जमा है, जिन्स की जमा है। यानी इसमें कई सारे, यानी शजर, उनमें बहुत सारे शजर 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 मिलकर हम इसको शजर कह रहे हैं। जुंद में कई सारे जो है ना, फौज इसकी जमा है। रूम में बहुत सारे अफराद इसकी एक जमा है। अरब में बहुत सारे अफराद इनकी जमा है। लेकिन अब इसका वाहिद हमें जब बोलना होता है तो हम इसमें या उन नस्ब लगाते हैं, तो हमें एक वाहिद शख्स का पता चल जाता है। लेकिन अरब बाय इटसेल्फ एक जिन्स है। रूम एक जिन्स है, एक क्लासिफिकेशन है। जुंद, फौज एक क्लासिफिकेशन है। शजर एक क्लासिफिकेशन है। तो इसको कहते हैं इस्मुल जिन्स अल जमई, यानी ऐसा जिन्स का नाम जो जमा का माना देता हो, यानी उसमें कई सारे अफराद शामिल हों। तो इसमें वाहिद का पता लगाने के लिए गोलता या फिर याउन नसब को लगाया जाता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसकी मिसाल अभी हम कुरान मजीद में भी देखेंगे कि ये जो तीन कैटेगरीज हैं, जमु तकसीर, इस्मुल जम और इस्मुल जिन्स अल जमई, इन तीनों केसेस में हमारे पास इख्तियार होता है कि इसमें ताउ तानीस या फिर नहीं तो लेटर्स में से मुजारे में लगाएं या फिर ना लगाएं। मिसाल के तौर पर यहां पर देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, मैं इंशाअल्लाह इसकी आयत, मुझे हैरत हो रही है कि मैंने कैसे आयत जो है ना वो मिस कर दी। मैं इंशाअल्लाह बताता हूँ आपको। आयत नंबर तो मैंने लिखा, लेकिन मैंने सूरह का नाम जो है ना वो नहीं लिखा। मैं इंशाल्लाह देख कर बता दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, और आराब ने कहा हम ईमान लाए। ठीक है, ये हुजुरात की आयत होगी मेरे ख्याल में। एक बार देखना पड़ेगा मुझे। वक़ालतिल आराब, अब यहां पर देखें आराब जो लफ्ज आया ना, आराब किसको कहते हैं पता है आपको? आराब किसको कहते हैं? जो बद्दू थे ना, बद्दू, बेडुइन, जो अरब्स थे, जो दूर दराज इलाके में रहते थे, इनको आराब कहते थे। आराब, अब ये एक क्लासिफिकेशन है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन है लोगों की, कि जो मक्का के इर्द गिर्द या मदीना के इर्द गिर्द ओबाश किस्म के जो गांव, बिल्कुल कहते हैं ना कि दूर दराज इलाके में रहने वाले, जो अरब थे, उनको आराब कहा जाता था। अब ये जो आराब है, ये असल में इस्मुल जिन्स अल जमई है। ठीक है, अगर आपको ये बताना हो कि इनमें से कोई एक शख्स, तो आप कैसे बताएंगे आराब में? और हदीस वगैरह में तो अक्सर मिलता है ये लफ्ज, राबी। आराबी। एक्सेलेंट, आराबी कहते हैं या लगाकर, आराबी। आराबी यानी कोई एक बद्दू। ठीक है, कोई एक बद्दू। मैं देख रहा था कि मैं एक सेकेंड, जी। तो आराबी, चूंकि इस्मुल आराब, चूंकि इस्मुल जिन्स अल जमाई है, इस वजह से यहां पर कालत आया है। जबकि काला भी आ सकता था, दोनों तरह जवाज बनता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कालत कहा, और यही ज्यादा प्रिवेलेंट है। जैसे अगर आपको यह भी कहना है ना कि अरब इस तरह कहते हैं, तो कालतिल अरब इस तरह कहा जाता है, कालतिल अरब, ना कि काल अल अरब। तो ये आपको जो है ना, इस चीज का आपको मिलेगा अक्सर जगह। जैसे औरक़ शजर, औरक़ शजर, औरक़ यानी पत्ते झड़ जाना, झाड़ना, ठीक है, या पत्तों का आना। औरक़ शजर, के पेड़ पर पत्तों का आना, औरक़। ठीक है, औरक़ अशजर। तो अशजर चूंकि इस्मुल जिन्स अल जमई है, इस वजह से औरक़ा भी आ सकता है और औरक़त भी आ सकता है। ठीक है, दोनों तरह आ सकता है। तो ये असल में आप लोगों को अपने जहन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, ये जो अब हमने सारा कुछ पढ़ा ना, कि जमा के केस में हमारे पास जमु तकसीर में, इस्मुल जिन्स में, सॉरी, इस्मुल जम में और इस्मुल जिन्स अल जमई में हमारे पास इख्तियार होता है कि दोनों तरह कर सकते हैं। ये क्यों है? तो उलमा कहते हैं कि फमन अन्नसा फ़अला मान अल जमा वमन ज़क्करा फ़अला मान अल जम। वो कहते हैं कि
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وقال نسوۃ، مثال کے طور پر ہے نا، وقال نسوۃ، تو یہاں پر قال اور قالت دونوں طرح کیوں الاؤڈ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ کبھی یہ لفظ نسوتن کو جمع کا معنی سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ پلورل ہے، تو جمع جو لفظ ہے نا جمع، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جمع، پلورل، جس کو عربی میں پلورل کہتے ہیں، سوری انگلش میں پلورل کہتے ہیں، الجمع، الجمع، یہ جو لفظ ہے نا الجمع، الجمع یہ جو لفظ ہے یہ پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے نا، اور یہ مذکر لفظ ہے، تو یہاں پر وقال الجمع من النسوتی، وقال الجمع من النسوتی، یعنی عورتوں کی ایک جم پلورل نے کہا، یہاں پر وہ الجمع کا معنی لیتے ہیں، اور کبھی یہ الجماعت کا معنی لیتے ہیں، اور الجماعت جو لفظ ہے نا، الجماعت کہتے ہیں گروپ کو، الجم کہتے ہیں پلورل کو، الجماعت کہتے ہیں گروپ کو، تو چونکہ کبھی یہ لفظ جم کا معنی دیتا ہے پلورل کا، اور الجم مذکر لفظ ہے تو قالا لا سکتے ہیں، اگر اس کو الجماعت کا معنی سمجھا جائے، گروپ کا معنی سمجھا جائے، تو پھر یہ گولتا ہونے کی وجہ سے یہ قالت آئے گا۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں جمع کے، یہ جماعت بھی ہیں اور یہ جمع بھی ہیں، یہ ایک گروپ کے نام بھی ہیں اور یہ پلورل بھی ہیں، تو دونوں میننگ کے لحاظ سے کبھی یہ اس کو وہ پلورل یعنی مذکر ٹریٹ کرتے ہیں، کبھی یہ مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر الجماعت کا معنی لیا جائے، گروپ کا معنی لیا جائے، تو الجماعت چونکہ فیمیل ورڈ ہے تو یہاں پر فعل کو فیمیل لایا جائے گا، اگر اس کا معنی پلورل کا لیا جائے جس کو الجم کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی پلورل الجم چونکہ مذکر ہے الجم، تو اس وجہ سے آپ اس کو فعل کو مذکر لائیں گے۔ تو بہرحال اگر نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، لیکن یہ ایک فائدے کے طور پہ میں نے بتایا کہ کیوں دونوں طرح اختیار ہوتا ہے، کیونکہ ایک معنی جمع کا ہوتا جم کا ہوتا ہے اور ایک معنی جماعت کا ہوتا ہے، تو وہ دونوں طرح الاؤ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یا نہیں؟ جی سر۔ اوکے شکران، اگر نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا بعد میں بھی۔ اچھا، اب اہم ایک دو پوائنٹ اور مجھے بتانا ہے۔ ہم نے اب تو جمع کی تینوں شکل پڑھ لی، لیکن جمع کی اور بھی تو شکلیں ہیں نا، ایک جمع مؤنث سالم ہے، ایک جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مؤنث سالم میں جو مشہور رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو فعل کو مؤنث لانا ہے، جیسے المؤمنات اگر آپ لاتے ہیں، المؤمنات ایک مومنہ، المؤمنات کئی ساری مؤمنات، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ آمنا نہیں لا کر آپ کیا لائیں گے؟ آمنت المؤمنات، مؤمنہ کئی ساری مؤمن عورتوں نے ایمان لائی، ٹھیک ہے، ایمان لائے، اسی طرح خرجت المسلمات، ذہبت الفاطمات، تو جب بھی جمع مذکر سالم آئے گا، سمپل رول کیا ہے؟ فعل ہمیشہ مؤنث لائیے، یہ بالکل پیکٹ رول ہے، جمہور علماء اسی پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جب بھی جمع مذکر جمع مؤنث سالم ملے، آپ کو فعل کیا لانا ہے؟ ہمیشہ مؤنث لانا ہے۔ اسی طرح اگر جمع مذکر سالم ہے، اگر جمع مذکر سالم ہے تو ہمیشہ فعل کیا لانا ہے آپ کو؟ مذکر لانا ہے، جیسے غلبہ، غلبہ، غلب المسلمون، غلب المسلمون، المسلمون جمع مذکر سالم ہے، المسلم ایک مسلم، المسلمون کئی سارے مسلمان، تو فعل ہم یہاں پر غلب المسلمون لائیں گے، نہ کہ غلبت۔ اب یہ مت کر دیجیے گا کہ یہاں پر غلبت المسلمون کر دیا، کیوں؟ کیونکہ غلبت المسلمون تو جمع تکسیر کے لیے ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کے لیے آپ کو ہمیشہ مذکر لانا ہے، مؤنث نہیں لا سکتے، کلیئر ہے؟ جی سر، جی الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، اور آخری بات،
इसमें। आखिरी बात वो ये कि कुछ अफआल ऐसे होते हैं, कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनको अफआलुल मद्ह व ज़म कहा जाता है। कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? अफआलुल मद्ह ही व ज़म्मी, तारीफ और बुराई के अफआल। तारीफ और बुराई वाले अफआल वो, उनमें से मशहूर जो है वो मैं आपको दो बताऊंगा। आपको बस इतना ही अपने जहन में रखना है। एक लफ्ज है नि'मा, नि'मा, और दूसरा है बि'सा। नि'मा और बि'सा। नि'मा यानी बहुत अच्छा हुआ या बहुत अच्छा है, और बि'सा यानी बहुत बुरा है। ठीक है, ये फेल माजी है। नि'मा और बि'सा। नि'मा बहुत अच्छा है, बि'सा बहुत बुरा है। तो इन अफआल के बाद जो इनका फाइल आता है ना, अगर वो मुअन्नस है, ठीक है, तो इसमें इख्तियार होता है। जैसे आप देखें, इस लफ्ज को देखें, निअमस, निअमस सदीकतु होना चाहिए था। निअमस सदीकतु जैनब। निअमस सदीकतु जैनब। निअमस सदीकतु जैनबु यानी बहुत अच्छी सहेली है जैनब। निअमस सदीकतु यानी अच्छी सहेली है जैनब। तो यहां पर निअमा जो लफ्ज है ना, ये फेल माजी है, और इसका फाइल कौन है? as-सदीकतु, बहुत अच्छी, यानी अच्छा हुआ। निअमा यानी अच्छा हुआ या अच्छी हुई, यानी अच्छी है। निअमत सदीकतु, अच्छी है, एज अ दोस्त या सहेली। कौन अच्छी है? जैनब। तो as-सदीकतु ये क्या है? मुअन्नस है, लफ्ज मुअन्नस है, बोलता है ना इसके आखिर में। लेकिन चूंकि ये निअमा के बाद आया है, ये फाइल इसका, तो इसमें ऑप्शन होता है। निअमत सदीकतु भी आप कह सकते हैं, निअमत सदीकतु भी कह सकते हैं, और निअमत सदीकतु भी कह सकते हैं। दोनों तरह आपके लिए जायज है। इसी तरह बिसल मरअतु हिंदुन, बहुत बुरी औरत है हिंद। बहुत बुरी औरत है हिंद। बिसल मरअतु हिंदुन, तो इसमें भी इख्तियार होता है कि आप इसको बेसा कहें या फिर बेसत कहें। तो ये आपको जहन में क्यों होना चाहिए? क्योंकि कुरान मजीद में निअमा और बेसा कई बार इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप ख्याल रखिएगा कि इसमें ऑप्शन होता है कि अगर निअमा और बिअसा के बाद अगर कोई इसका फाइल मुअन्नस की शक्ल में आए, तो आप निअमा भी लिख सकते हैं, निअमत भी लिख सकते हैं, और बिअसा भी लिख सकते हैं, बिअसत भी लिख सकते हैं। तो मैंने अपने तौर पर ये चार आपको कवायद बताए, जहां पर आपके लिए अख्तियार होता है कि आप दोनों तरह लिख सकते हैं। गोलता के साथ भी, सॉरी, ताव तानी से साकिना माजी के केस में, और अनैतु लेटर्स में से ता को लगाकर मुजारे में, दोनों तरह इख्तियार होता है। चार केसेस में, वो चारों केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब ये जो चार केसेस हमने पढ़े हैं, इसके मुतालिक कोई सवाल है आपका? इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, ये इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, नेक्स्ट क्लास तो हमारी नहीं होगी, क्योंकि वो ईद के फौरन बाद पड़ रहा है, या ईद वाले दिन शायद पड़ जाए आप लोगों के यहाँ। तो अगली क्लास तो हमारी नहीं होगी। इंशाल्लाह उसके बाद जब हम आएंगे, तो हम फाइल की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके सामने बहुत सारी आयतें या फिर जुमले आपके सामने रखूंगा, और फिर आपको क्लास में बताना होगा कि फाइल कौन सा है, और हम इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, जो हमने पढ़ा है कि इसका फाइल कौन है, इसका फाइल कौन है। तो इस तरह हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने पढ़ाया अभी कुछ मिनटों में, इसके मुतालिक अगर कोई सवाल है तो आप जरूर कर लें। मेरा इरादा था कि मैं एक दो चीजें और करूंगा, देखता हूं मैं इंशाल्लाह। वक्त है हमारे पास अभी थोड़ा, कुछ अहम बातें हैं जो आपके सामने रखनी है इंशाल्लाह। अगर मजीद इसमें कोई सवाल नहीं, तो फिर हम अपने शुरू वाले दर्स में दोबारा से जाएंगे, जो कि था हद्दुल फाइल, यानी फाइल की डेफिनेशन क्या है। फाइल की डेफिनेशन क्या है?
ठीक है। तो फाइल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि फाइल किसको कहते हैं? वो इसम जो जिसकी तरफ फेल की निस्बत की जाए, जिसकी तरफ फेल की निस्बत की जाए। एक मिनट। ओके। और इसकी इस्तिलाहन हमने जो तारीफ पढ़ी थी उसकी तरफ अब हमारा फोकस होगा। ठीक है, की तरफ हमारा अब फोकस होगा। और वो क्या है? हुवा मा उसनिदा इलैहि फेलुन तामुन। फाइल किसको कहते हैं? कि जिसकी तरफ फेल की निस्बत की जाए, लेकिन फेल अब हम इसमें कुछ बातें जोड़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि फाइल किसको कहते हैं? ऐसे इस्म को कहते हैं जिसकी तरफ फेल की निस्बत की जाए, ये तो हम समझ गए। लेकिन फेल क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए, ताम फेल होना चाहिए। अब ये ताम फेल किसको कहते हैं? ताम कहते हैं जिसको कहते हैं कंप्लीट फेल। कंप्लीट फेल यानी, ताम फेल किसको कहते हैं? ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर एक मुकम्मल माना दे। मिसाल के तौर पर, कोई भी फेल जब होता है ना, गौर से इस बात को समझिएगा, कोई भी फेल होता है ना, तो इसमें दो चीजें होती है। एक होता है इसका हदस, यानी क्या काम हो रहा है, और दूसरा क्या होता है कि इसका जमाना क्या है ना? काम क्या हो रहा है और जमाना क्या है, और फिर इसके बाद ये काम की निस्बत किसकी तरफ हो रही है। इन चीजों को मिलकर एक कंप्लीट माना फेल देता है। मिसाल के तौर पर, दरबा मुहम्मदुन। ठीक है, दरबा मुहम्मदुन। दरबा मुहम्मदुन का क्या माना है? मोहम्मद ने मारा। मोहम्मद ने मारा, वेरी गुड। अच्छा, दरबा का अगर आप ले लें, दरबा पर आप फोकस करें, दरबा में क्या हमें पता चल रहा है? दरबा में हमें क्या पता चल रहा है? दरबा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? काम की सर मारने थे। काम का मारने कोई मार रहा है, मारने का जी काम हो रहा है, और ये माजी में हो रहा है ना? अब जी सर। दरबा मुहम्मदुन, मारा मोहम्मद ने, हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया। हमें यह भी पता चल गया कि ये काम पास्ट में हो रहा है, हमें यह भी पता चल गया कि ये कौन सा काम हो रहा है, हमें यह भी पता चल गया कि किसने मारा है। ठीक है, इसको कहते हैं फेल तामुन। इसके मुकाबले में, ठीक है, अब मैं एक और फेल माजी लाता हूं। ठीक है, काना मुहम्मदुन। काना, ये फेल माजी है, यानी इसकी शक्ल क्या है? जैसे काला, सारा, इस तरह काना। काना यानी ये एक फेल माजी की शक्ल में का है, और काना का माना होता है होना या था, ये माना देता है। काउनुन का माना होता है होना। काना ये पास्ट का मीनिंग देता है, जैसे था। काना, काना यानी था। बात आ रही है समझ में? दरबा, उसने मारा। काना, वो था। बात समझ में आ रही है कि काना का क्या मीनिंग है? काना जी यानी सर। वो था। अब मैं कह रहा हूं काना मुहम्मदुन। काना मुहम्मदुन, मोहम्मद था। क्या, अगर हम इसको फेल मानकर कि काना एक फेल है और मोहम्मद इसका फाइल है, मिसाल के तौर पर, क्या काना और मोहम्मद मिलकर एक मुकम्मल माना हमें दे रहा है? नहीं सर।
नहीं। क्या मिसिंग है? व्हाट इज मिसिंग? दरबा मोहम्मद, काम। मोहम्मद ने मारा। काना मोहम्मद, मोहम्मद था। क्या मिसिंग? काम मिसिंग है, काम। यानी खबर। इंफॉर्मेशन एक मिसिंग है, एक खबर मिसिंग है मेरे पास। यानी ये असल में ये काम क्या हो रहा है? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? मैं क्या इंफॉर्मेशन, क्या खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं? वो खबर हमें नहीं मिल रही है इसमें कि काना मोहम्मद, मोहम्मद क्या था। तो अब इसको बताने के लिए हमें एक और इस्म की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं खबर। ठीक है, जिसको कहते हैं खबर। जो उस काना में जो मिसिंग हदस की जो इंफॉर्मेशन थी कि कौन सा काम हो रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है। कि काना मोहम्मदुन रसूलुल्लाह भी हो सकता है, या ताजिरन, कि मोहम्मद एक ताजिर था। अब ये माना कंप्लीट होता है। अब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। ऐसे ही है ना? जो विदाउट ताजिर के के बदले में, अब ये ताजिर नसब की हालत में क्यों है, ये बात की डिस्कशन है। लेकिन आप ये बात अपने जहन नशीन करिए कि काना सॉरी, कि काना जो है वो अपने खुद इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मोहम्मद के साथ मिलकर एक इंफॉर्मेशन आपको दे सके। वो इंफॉर्मेशन का मोहताज होता है एक और इस्म के लिए जो उसके बाद आता है, ताजर के फॉर्म में, मिसाल के तौर पर। तो ऐसे फेल को हम कहते हैं फेल नाकिस। नाकिस यानी इसमें कमी है। ये फेल तो है लेकिन ये कमी है। तो ऐसा अगर फेल हो जैसे काना है, तो काना के बाद जो इस्म लिखा होता है ना, वो इस्म को हम उसका फाइल नहीं कहते। ठीक है? और ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। काना के बाद जो इस्म लिखा होता है रफा की हालत में, वो इसका फाइल नहीं होता, वो इसका इस्म कहलाता है। और ताजिर जो होता है वो इसकी खबर कहलाता है। तो हम जब फाइल के बाब में होते हैं ना, कि फाइल जो हम कहते हैं, तो ये शर्त उलमा लगाते हैं कि जिसको आप फाइल कह रहे हैं ना, वो फेल जिसके बाद वो आ रहा है वो फेल ताम होना चाहिए, नाकिस नहीं होना चाहिए। अगर वो नाकिस है तो फिर वो फाइल नहीं कहलाएगा, वो इस्म कहलाएगा, इस्म काना या इस्म फुला, इस्म फुला। ठीक है? उसका नाम फाइल नहीं होगा। यानी काना के बाद ये जो मोहम्मदुन लिखा है, इसको हम फाइल नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसका फाइल नहीं है, इसकी निस्बत काना की तरफ नहीं हो रही है। ठीक है? बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन मुकम्मल अपने खबर के साथ मिलकर देता है। जबकि दौराबा में ये फेल के अंदर ये सलाहियत होती है कि अपने फाइल के साथ मिलकर एक इंफॉर्मेशन मुकम्मल दे सके। तो इसको कहते हैं फेल तामुन। तो फाइल के लिए जो पहला शर्त है वो ये होना चाहिए कि जो फेल है ना, जो फेल है वो ताम होना चाहिए, जिसके बाद फाइल आएगा। अगर वो फेल ताम नहीं, नाकिस फेल है, तो फिर उसको हम फाइल नहीं कह सकते। क्या काना के साथ खबर ही आती है, फेल नहीं? काना के साथ खबर, काना के साथ खबर भी आता है और काना के साथ फेल भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह जब वो करेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो मिसाल दूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में जाना जरूरी है कि काना को नाकिस क्यों कहा जाता है। ठीक है? काना को नाफेल नाकिस क्यों कहते हैं? फेल और नाकिस कहा जाता है काना को। ठीक है? और इसको इंशाल्लाह हम जब काना का चैप्टर आएगा तो इसमें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहली बात अपने जहन में आपको रखना है कि फेल ताम होना चाहिए, जिसके बाद फाइल आएगा। अगर वो फेल ताम नहीं, तो उसको हम फाइल नहीं कहेंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो फेल आ रहा है ना, वो मबनियुन लिल मालूम होना चाहिए। यानी जो फेल जिसके मुतालिक हम कह रहे हैं कि इसके बाद जो इसम लिखा है वो फाइल है, वो मबनी लिल मालूम होना चाहिए। अब ये मबनी लिल मालूम क्या चीज है, इसको भी समझ लेते हैं। मबनी लिल मालूम कहते हैं ऐ मबनी लिल फाइल, यानी फाइल के लिए बनाया गया हुआ फेल। और इसको फेल मालूम भी कहते हैं। यानी वो फेल जिसके साथ फाइल जिक्र किया गया हो।
ऐसा फेल कि जब वो लिखा जाए तो उसके साथ उसका फाइल मजकूर हो, आपको पता चल जाए कि ये काम किसकी तरफ निस्बत की जा रही है, कौन इस काम को सरंजाम दे रहा है बेसिकली, या किसकी तरफ इस फेल की निस्बत असल में की जा रही है। मिसाल के तौर पर आप देखें, हफिजा मोहम्मदुन अदर्स, मोहम्मद ने दर्स को क्या किया, हफिजा, याद किया। जब आप इस लफ्ज को देखते हैं हफिजा, हफिजा जब आप पढ़ते हैं, हफिजा का माना होता है उसने याद किया। तो जाहिर है सबसे पहली बात, अभी मोहम्मद लिखा हो या ना लिखा हो, सबसे पहली बात आपके जहन में क्या आती है कि ये याद करने का काम कोई कर रहा है, जिसकी तरफ मैं इसको निस्बत करूंगा या करूंगी। अब चाहे वो हुआ की जमीर हो या उसके बाद कोई रफा की हालत में कोई इसम लिखा हो, मैं फौरन कह दूंगी या कह दूंगा कि ये इसका फाइल है। ऐसा ही है ना? यानी फेल की निस्बत आप फेल पढ़कर कर सकते हैं कि फुला शख्स ये काम कर रहा है, या फुला शख्स की तरफ या फुला चीज की तरफ इसकी निस्बत है। लेकिन अब इसके मुकाबले में इसको देखें आप, हुफिज़ा दर्सु, हुफिज़ा का माना होता है याद किया गया, हुफिज़ा याद किया गया। एक है याद करना और एक है याद किया जाना। दोनों में फर्क क्या है? मैं कहता हूं मोहम्मद ने दर्स को याद किया, और मैं कहता हूं कि दर्स को याद किया गया। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले जुमले में हम्म। फाइल है और पहले हुफिज़ा वाले जुमले में हम फेल की फाइल निस्बत किसी फाइल की तरफ कर सकते हैं कि फुला ने याद किया, या तो उसने याद किया, या मोहम्मद ने याद किया, या जुबैर ने याद किया, या फुला ने याद किया। दूसरे वाले जुमले में दर्स तो याद किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा। हुफिज़त दर्स, दर्स को याद किया गया। जब ऐसा मामला हो जाए कि फाइल ही गायब है, यानी हम उसकी निस्बत ही नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे फेल का फाइल नहीं होता। अब हुफिज़ा दर्स में दर्स इसका फाइल नहीं बनेगा। दर्स जो यहां पर लिखा है ना, दर्स, दर्स को याद किया गया, ये ये असल में इसका फाइल नहीं है, क्योंकि याद तो कोई और कर रहा है, दर्स को तो याद किया जा रहा है। बात आ रही है ना समझ में? हाफिजा मोहम्मद दर्स में मोहम्मद को फाइल कह सकते हैं क्योंकि याद मोहम्मद कर रहा है। हुफिज़ दर्स में, यानी जिसको याद किया जा रहा है वो तो दर्स है, लेकिन दर्स को याद करने की निस्बत किसकी तरफ की जाए? हाँ, क्या हमें कोई मिल रहा है जिसकी तरफ याद करने की निस्बत को की जाए, कि कौन याद कर रहा है? हुफिज़ दर्स, दर्स को याद किया गया। अब कोई तो याद कर रहा है ना, लेकिन कौन है? इस जुमले से क्या पता चल रहा है आपको कि कौन याद कर रहा है? हुफिज़ा का माना उसने, उसे याद किया गया, दर्स को याद किया गया। तो इसको कहते हैं मबनी लिल मजहूल। ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं मबनी लिल मजहूल, और इसको कहते हैं मबनी लिल फाइल, या मबनी लिल मालूम। दोनों तरह कहते हैं, यानी जिसमें फाइल मालूम हो। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये हफिजा है और ये हुफिजा है, दोनों में फर्क है। तो ये हमें इंशाल्लाह आगे हमें पता चलेगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मबनी लिल मालूम है और कौन सा मबनी लिल मजहूल है। लेकिन शर्त क्या है कि जिसका आप फाइल कह रहे हैं वो फेल मबनी लिल मालूम होना चाहिए, तभी आप उसका फाइल बता सकते हैं। जो मबनी लिल मजहूल है फिर आप फाइल कैसे बताएंगे? बात आ रही है समझ में? यानी फाइल के लिए, अगर आप किसी जुमले में फाइल ढूंढ रहे हैं तो फेल को ऑब्जर्व करिए, क्या मेरा फेल जो है वो ताम है या नहीं है, पहली शर्त। क्या मेरा फेल मबनी लिल मालूम वाले स्ट्रक्चर में है, या ये माना किया गया या उसे किया जाएगा, इस तरह का माना दे रहा है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसको बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इसको कहते हैं, देखिए मेरे जहन से निकल गया इंग्लिश वाला,
किसी को याद है इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक तो नहीं देना। हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स इसको बोलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स। एक होता है एक होता है डूइंग, ठीक है, ही इज डूइंग इट। और एक होता है इट वॉज डन, ठीक है। एक होता है ही इज बीटिंग, और एक होता है ही वॉज बीटन। तो ये क्या है? एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स है। तो वर्ब हमेशा एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, तभी इसका फाइल होता है। अगर वो पैसिव फॉर्म में है तो वो इसका फाइल नहीं बनता, ठीक है, इसका फाइल नहीं बनता। तो हाँ। नहीं, इंशाल्लाह आपको नहीं, मैंने तो स्कूल में पढ़ा था ये, अभी याद, स्कूल में पढ़ा था अपने। उसके बाद तो फिर पढ़ने का मौका नहीं मिला। खैर, बहरहाल, तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आज हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जो एक दो बातें और रह गई हैं इंशाल्लाह वो मैं अगले क्लास में उसको पढ़ाकर और फिर इंशाल्लाह तमरीनात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। कुछ और बातें रह गई हैं इंशाल्लाह उसको अगले दर्स में मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। हमने भी पढ़ा था जी। तो कोई मजीद सवाल है तो इंशाल्लाह आप कर लें, नहीं तो फिर इसका इसका जो है ना तकमील है इंशाल्लाह ये सारे शुरूत के जो डेफिनेशन है फाइल का, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें फिर औ मा युशबिहुहु कि जो फेल से मुशाबिहत रखता हो, यानी फेल या फेल से मुशाबिहत रखने वाली चीजें। तो मैंने आपको जो कल क्लास में जो भेजा भेजा था स्क्रीनशॉट, ये उसका डिस्कशन है। ये भी एक अहम चीज़ है जो हमें डिस्कस करना है। और फिर एक दो बातें और रह जाएंगी वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर कोई मजीद सवाल ना हो तो इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद मुलाकात होगी। कोई सवाल है आप लोगों का? अच्छा, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है फिर, तो इजाज़त दें फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व इय्याकुम जमीआ।